Sunday. Oh, the Tara village. Oh, it was so crazy. I remember a week before. Exactly. We worked so much. We put up banners, brainstorming sessions, skates, plays, The FGD that we had before the interview, And before all- going and conducting it. and all the preparation in the night mess classes, after classes. The making of those slogan posters and brainstorming the skit part was best. I mean, we got to learn Marathi. Yes. Thoda. Exactly. And Dr. Google was always there for us. So I remember when we started off on Sunday, it was our teams were divided into two parts. So one was your team and one was my team. That was basically in the cab only just to reach the destination. So how was your experience going there? Because we had one hell of a ride. Ours was very nice. The cab driver was really nice. He stopped at Panvel. He said we won't go further, but then we convinced him कि भैया चलो ले चलो आगे तक. It was just 15 kilometers away from Panvel. So finally he agreed. How was yours? So they said that he cannot, after reaching Panvel, our driver said he cannot take us there to the village. He just dropped us somewhere in Panvel, and luckily we had Ayush with us who could speak in Marathi. So somehow we convinced one auto wala. Auto means tum tum here, Yeah. and four of us just sat, and we had bhel puri, pani puri on the way because we stopped at some petrol pump, and somehow we convinced him to take us to the village. And once we reached the village, we met you guys. Best news there. I mean, it was other than, apart from our expectation, it was way far from our expectation, and you guys told us 60% people are literate Yeah, here. the village was such that they had internet connections, they had routers, they had ACs in their houses, computers and laptops. So they were quite literate in terms of literacy, financial literacy. So then we were thinking, all the plans that we made were thinking that people are not even aware. So we had to change our strategy there, and we started writing new slogans. And it's good that we got that stall, that small stall on the highway. वो shop भैया वाले ना, Yes. भैया जी की shop. Chai shops, which allowed us, we had an entire room for that, for all the preparations, for the new banners, for the new skit and the script. It was really nice of fun. And I remember while we were doing that, Mandar, Bhanu and Himanshu had to go to meet the Sarpanch, and They did not get any lift. There were no buses and no tum-tums to be specific. And they boarded a truck. truck where Mandar actually fell on Himanshu. Meanwhile, we were there preparing a new skit where Kuku and Vishal were teaching us Marathi and telling us how we can just come up with some Marathi words and put in their skit. I remember we had, scripted 3 different skits. While we were preparing the whole skit there, waiting for the permissions, we got the call from Mandar saying that, dude, let's just go back. Yes. Because the Sarpanch didn't allow us. He said that we cannot conduct the skit over there on that particular day. And so we decided to change our entire strategy. We decided to go door to door and meet everyone and interview the people. And first we went to the shopkeeper only to ask, can we really go door to door? Will it be even useful here? So what he told us that anyways, even if you do a gathering, the females are not going to come out, kids are not going to get any awareness. The men are always at work there. So he said, try doing door to door, that will be fine for you guys. भैया हम लोग एक्सिस बैंक की तरफ से आए हैं आपसे थोड़े सवाल पूछने हम फ्री हैं आपका नाम क्या है? आप
ये गाँव कौन सा गाँव है? यही वाले गाँव। मोबाइल फ़ोन है? तो मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट आता है? आपको अभी नोटबंदी हुआ था उसके बारे में पता है? हाँ पता, टीवी न्यूज़ पे दिखा था। तो आप फर्क पड़ा था उससे? हाँ उससे फर्क पड़ा था। आप वो पेटीएम का पैसे नहीं लेते हो, आप नहीं सिर्फ कैश कैश लेते हैं। उनसे आपने कभी ट्रांसफ़र नहीं किया कुछ अभी ऑनलाइन? तक किया नहीं ऑनलाइन, मगर वो सब करते हैं, नेट से होता है। नेट से आपको पता है? पता है मेरे को। तो आपको आपका बैंक अकाउंट जो है उसका ऐप होगा नेट पे, तो वो नेट पे ना वो ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो आप उससे ये पेटीएम हो गया, भीम जो गवर्नमेंट ने भीम स्टार्ट किया है, वो सीधा बैंक अकाउंट का पैसा निकाल के आपका ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो अगर आपको अपने गाँव में दूसरे गाँव में अपने रिलेटिव्स को देना है तो आप उससे भेज सकते हो। और ये देखो भैया, ये सारे हमारे अकाउंट, ये होता है अपना कार्ड का, ये वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए आपको पता है ना गवर्नमेंट का। हाँ, आप लोगों के फिर ये वॉलेट है अपना, पेटीएम है, पेटीएम का आप जैसे आपकी शॉप है तो आप अपनी शॉप में पेटीएम आप स्टार्ट कर दो, तो आगे अभी आप बोल रहे हो कि गांव में काफ़ी लोगों को पता है पेटीएम के बारे में, तो आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो आपको आपका परचेज होता रहेगा। लेकिन जो मैं आपको बोलती हूँ ना, ऑनलाइन आप भेज सकते हो पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो जिसका भी जो भी बैंक अकाउंट है ना आपका, उसकी आप डाउनलोड करना, उससे आप दूसरे अकाउंट किसी भी अकाउंट को भेज सकते हो। जैसे एक्सिस बैंक में आप डाउनलोड करोगे तो एक्सिस बैंक में आप दूसरे किसी बैंक को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो एक्सिस पे की तरफ से। तो आप लोग को बस हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ पे पेटीएम का लगाओ तो, या भीम का लगाओ, गवर्नमेंट जो भीम स्टार्ट किया है भीम लगा दो, उससे बहुत सुविधा होगी आपको, सेफ होगा आपका पैसा जो है वो आपके मोबाइल में रहेगा, हाथ से कहीं गिरेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, तो आप वो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपको हिसाब भी जब लेना होगा तो पूरा उधर ही स्टोर होता जाएगा, तो आपको जब देखना है कि पूरे महीने में कितना खर्चा हुआ है तो आप उसको खोल के पूरा देख सकते हो। तो है कि एक कदम प्रगति की। ठीक है, करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। Talking to the shopkeeper, we decided to go door to door, remember? Yes, and in between we met those kids, they were so excited. We made them hold banners and we took the picture with them. And they guided us to a house with 4 ladies, and there was one small kid also. Yes. We were so excited. We asked them how often do they use net. So only the young girl who has a college in Panvel, she said that she uses, but only for online transactions that they would do. Yes, even if she orders something, she shops online, then she'll she'll opt for the mode of COD and not net banking or transfer like that. So we discussed this. We even taught her. We taught her, and we told her how safe our normal bank account transfer is, instead of using COD where she can just lose the money. It's easy, and she was excited. She was very happy when she learned, if you remember. Yes, we showed her the entire app and the entire procedure, and we even told her that in the history also she can check whatever she's shopped, all her transactions. She was very excited. Even aunties were very good. They also were very happy about it. And we asked them also from the poster that what do you think we're going to talk about. And Vishal and Ayush came to the rescue by standing to them. That was pretty much good. आम्ही आहे ना ॲक्सिस बँकच्या एक प्रतियोगिताकर्ते आहे. जे आम्हाला काय सांगायचं आहे की आत्ता नोटबंदी जी झाली होती त्याच्यामुळे किती तुम्हाला अडचण आली ना, त्याच्यामुळे आता तुमचं याचा उपाय काय आहे, तुम्ही आता काय नवीन करू शकता की तुम्हाला अडचण नाही आहे ना. मग त्याच्यावर काय करायचं तुम्हाला की इंटरनेट कमी काय तुम्हाला माहिती आहे का. इंटरनेटमध्ये काय होतं, मोबाईल फोन आहे, मोबाईल फोनमध्ये इंटरनेट आहे. आता त्याच्यात तुम्ही तुम्हाला हे माहिती आहे का की मोबाईल फोनमध्ये तुम्ही बँकचे पण ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता. हे माहिती आहे का, म्हणजे ऐकलं तुमचा बँक अकाउंट आहे का? हां, कुठे आहे? युनियन बँक. अच्छा, म्हणजे या इथे फक्त एकच युनियन बँक आहे ना, त्यांचं ATM पण आहे. अच्छा, ATM काढलं नाही. तर तेच आम्हाला विचारायचं होतं की तुम्हाला माहिती असेल की मोबाईलमधून आपण पैसे ट्रान्सफर करू शकतात. एकचा आणि दुसरं पेटीएमचं नाव ऐकलं आहे का तुम्ही? पेटीएम फीचर कधी यूज केलं आहे स्वतःच्या मोबाईल नाही तर कोणा आणखीनच्या मोबाईलवर?
पाहिलं आहे कधी कसं ते वर्क करतं, कसं ट्रान्सफर होतात ते असं पाहिलं आहे कधी? ओके. हां. कसं असतं की तुम्ही जेव्हा ते ॲप्लिकेशन डाउनलोड करतात ते सॉफ्टवेअर असतं ना मोबाईलमध्ये, त्याच्यात काय असतं की तुमचं बँक अकाउंटची तुम्ही सगळी माहिती टाका, ठीक आहे. आणि तुम्हाला जर कोणाला पैसे ट्रान्सफर करायचे असतील ज्यांना गरज असते, ते नातेवाईकांना किंवा कोणाला जे आता म्हणजे लांब आहे ना गावात, दुसऱ्या गावात आहे, तर तुम्ही ते काय करता, तुम्हाला जाऊन द्यायची गरज नाही, तुम्ही घरी बसून मोबाईलमधूनच तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता. म्हणजे त्यांचा फोन नंबर टाकून तुमच्या बँक अकाउंटमधून पैसे कापतील ते लोक बँकवाले आणि त्यांच्या याच्यात त्यांनी ट्रान्सफर करतात. म्हणजे घरी बसून तुम्हाला पैसे तुम्ही पोचवायला सोय आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला ते रांगेत उभं राहायला नाही लागतं, तुमचा टाईम वेस्ट नाही होणार. आणि दुसरं की ते सेफ पण आहे. सुरक्षित आहे. म्हणजे असं नाही की तुम्हाला घाबरायची गरज नाही की तुमचे पैसे तुम्ही मोबाईलमध्ये टाकतात, मग कोणी असं फ्रॉड पण होत असतात ना की कोणी दुसरे आले आणि मोबाईलमधनं पैसे काढून गेले. म्हणजे ते इंटरनेटचं फ्रॉड पण असतात. पण बँकवाल्यांचे सॉफ्टवेअर जे असतं ना त्याच्यात काय ते त्यांनी सिक्युरिटी पण टाकलेली असते. ते गव्हर्नमेंट जे आहे ते त्यांच्याकडनं त्यांनी मान्यता घेतली असते की आमचं हे आहे आणि आमच्या कस्टमर जे लोक वापरतील त्यांचे पैसे कुठेही होणार नाही. म्हणजे ते पैसे ट्रान्सफर करणार पूर्ण ज्यांना ट्रान्सफर करायचे त्यांना पूर्ण पैसे भेटतील. म्हणजे असं मध्ये काही पैसे कोणी पण कट नाही असं आहे. कपडे घ्यायचे असतात. तुम्ही ऐकलंय का की आता लोक मोबाईलमधनंच कपडे घेतात, शॉपिंग करतात, बरोबर आहे. पे म्हणजे करते हम पैसा देता है ना, तो उसकी जगह उधर डायरेक्टली सीधा सीधा उसी से दे सकते हो. हेच होतं की लोकांना जाऊन त्यांना सांगायचं की कसं करायचं आणि तुम्हाला काही घाबरायची गरज नाही आहे. जर पुढे असं काही आलं तुम्हाला असं हे करावंच लागतं आहे. म्हणजे काही बिलकुल घाबरू नका. असं हे आम्ही ॲक्सिस बँक करतो आलो, त्यांचं पण स्वतःचं सॉफ्टवेअर आहे मोबाईल आणि ते तुम्ही जर डाउनलोड केलं तर तुम्ही तुमचं अकाउंट ॲक्सिसमध्ये नसलं तरी चालेल. आता युनियन बँकमध्ये आहे तिथेच ठेवा. तुम्ही ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड केलं म्हणजे तुम्ही ते सॉफ्टवेअर वापरून तुमच्या युनियन बँकमधून HDFC बँकमध्ये असेल कोणाचं तरी अकाउंट तुमच्या नातेवाईकांचं, नाही तर तुम्ही तिथं पण तुम्ही इंटरनेटवर transfer काही करू शकता. खरीदलं, सामान खरीदलं तर त्याच्यावरती तुम्ही पैसे देऊ शकता. तर ॲक्सिस पे नावाचं एक आहे सॉफ्टवेअर, त्यांचं ॲप्लिकेशन आहे. हां. तर त्यांनी तुम्ही कोणत्याही बँकनी ट्रान्सफर करू शकतात आपले पैसे ॲक्सिस पे ॲप्लिकेशनमध्ये. आणि मग तिथून तुम्ही काही पण परचेस जे पण तुम्हाला करायची, खरेदी करायची, ऑनलाईन करायची ते तुम्ही करू शकता. ठीक है, मैंने ये टॉप लिया अपना कपड़ा. ऐड टू कार्ड में ये देखो, मेरा ना अपना डेबिट कार्ड जो है ना, आपका तो है नहीं अभी, तो एक वो ऑप्शन होता ये रहा है नेट बैंक. नेट बैंकिंग होता है. अब नेट बैंकिंग में आप चूज़ बैंक करोगे तो यहाँ पे सारे बैंक के नाम आ जाते आपका हैं. कौन सा है? यूनियन है ना? यूनियन भी हो गई. देखो रहा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, हो जाएगा. आपको OTP पता है? एक वो एक पिन नंबर आपके हाँ. मोबाइल पे आएगी. तभी मैसेज आएगा ताकि कोई और अगर आपके फ़ोन से यूज़ कर रहा है ना तो पैसे फिर वो ना भर पाए. To that family, you remember that the ones whose house was big and had cars. Okay, the lavish family in the village. And they were basically, I feel they were influencers because everybody in the village looked upon them. They were very well educated also. So we thought that instead of asking normally about how aware they are, we instead asked them about the village awareness, because not every house could have been covered. So we thought that when we come later for this kit or anything, if it's possible, then we'll take their help to promote it, and through them we'll promote our work. Because everyone was aware but they were not using. So from them we got to know that they don't find the need to use Paytm or anything else. They're like, what is the use when vendors here are also not asking for Paytm? Everybody was using cash transactions only. Also, they had just one bank in the entire. Union Bank. Yes, Union Bank. They had ATM but no one used cards, like the girls said. Even these people said that they use all these things but in the city, not here in the village. When they go to Panvel, they use those cards. That's why we decided that our skit will focus on all three aspects. And we said that we'll come back on Tuesday for this. So, और
आप सबसे ज़्यादा कौन से ऐप्स यूज़ करते हैं? तो SBI का ही ज़्यादा करके, बाकी और कोई फाइनेंशियल ऐप आप यूज़ करते हैं? फाइनेंशियल में पेटीएम का एक पेटीएम करते हैं? ओके। तो अभी डिमोनेटाइजेशन का आपको पता चला होगा कि बहुत इफेक्ट हुआ, तो आपको दिक्कत हुई? थोड़ी बहुत तो दिक्कत हुई, नहीं हुई बोल नहीं सकते, लेकिन हुई। तो लेकिन सरकार तो अब चाहती है कि अब पूरा डिमोनेटाइजेशन आने के बाद हम लोग पूरा डिजिटल पेमेंट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो आप क्या तो आपके गाँव में अगर हम देखने जाएं कि कितने लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो आप हमारी हेल्प करेंगे इसलिए कि हम गांव में जाके लोगों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताएं? कर सकते हैं। कि आप जैसे आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे अगर हम आपसे चाहते हैं कि तो कोई भी चीज़ हमें कुछ लेनी है ऑनलाइन से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए उसके लिए, वो सब बता सकते हो उसमें। एक बात बताइए, आप ये गांव से ही है ना, मतलब हमेशा से यहीं पे थे, आपको पता कैसे चला यहाँ पे कि पेटीएम आया है या इंटरनेट में नेट वो बैंकिंग तो यूज़ क्या अभी करना है? कंप्यूटर में पीसी वगैरह यूज़ करते हैं, तो टीवी पे अपना ऐड वगैरह आते हैं, उससे मालूम चल रहा है कि पेटीएम से ये हो सकता है। फिर उसको आपने देख अपने के ऐसा घर यूज़ किया मतलब। घर पे सबको बताया कि आप ये घर पे आप सब यूज़ करते हैं कि सिर्फ आप यूज़ करते हाँ, हैं? मतलब ज़्यादा करके भाई यूज़ करेगा, मैं प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि गांव में सबको पता है, सबके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, सब एप्लीकेशन भी है, पर वो लोग यूज़ यूज़ नहीं कैसा करते। करना है, हाँ, वो हाँ। प्रैक्टिकली आपको ऐसा क्या लग रहा है कि प्रैक्टिकली आपको डेमो देना चाहिए। हाँ आपको पता है वो ऑपरेट किया नहीं, तो उसको प्रैक्टिकली डेमो देना हो जाएगा। अभी नॉर्मल मतलब में क्या है कि एक दो लोगों से बात किया तो मतलब हमको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे लोग इसलिए भी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उनको समझ नहीं पड़ रही, और जो भी जितने भी दुकान वो लोग हैं, दुकान वाले जो जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अगर तक उनके पास स्वाइप मशीन नहीं आती, हाँ। वो भी वो यूज़ नहीं करेंगे। कार्ड भी नहीं है कैश में लोगों पैसा के है, पास कैश यहाँ नहीं पे। करेंगे वो। वही। मोबाइल है, नेट है, पर कार्ड भी नहीं है किसी के पास, हाँ। अकाउंट तो उन्होंने नेट बैंकिंग से किया नहीं है। तो मतलब आपको क्या लगता है क्यों ये लोग ने नहीं किया? हो सकता है कि हम लोग उसमें हम लोग वही चीज़ को लेके फिर हम आगे कुछ स्टार्टिंग से कैसा कैश पेमेंट चालू है सभी जगह। मेन बोलने के रीज़न तो वही है, कैश पेमेंट चालू है क्योंकि अभी ये तो जस्ट अभी 1 नवंबर से चालू हुआ है। हाँ। उसी के लिए किसका पास नहीं है एटीएम कार्ड, उन्होंने लिया भी है उसमें कार्ड। जैसे गवर्नमेंट ने वो रूल ही निकाला है। रूल स्टार्ट किया है, भीम भीम पे ऐप भीम है। ऐप है, भीम ऐप है वो। तो वो सब की बात ठीक है। चलिए फिर हम लोग तो वही एक्सिस बैंक से प्रमोट करने आए हैं, तो हम लोग ने हमारा मोटो रखा है कि एक कदम प्रगति की ओर। तो हम लोग होप करेंगे आप हमारे साथ हेल्प जुड़ेंगे, करेंगे। हमारी हेल्प करें कि आपके हर एक गांव में कोने कोने में कैशलेस ट्रांजैक्शन हो। वो हम कैसे बोलेंगे, प्रगतीच्या करते पुढचं पाऊल, प्रगतीच्या करते पुढच्या पुढचं हा प्रगतीच्या करते पुढच्या पाऊल. हा शॉप वाले यूज नहीं कर रहे। तो क्यों इंस्टॉल करेंगे? और बैंक पर एडमिट कार्ड का मशीन भी होना चाहिए, तो इंडियन आउटलेट वो लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं ना, तो एक पॉइंट इज